بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز دوستوں، طالوت اور جالوت کون تھے؟ جالوت کو کس طرح شکست فاش ہوئی اور حضرت شمویل علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کی، یہ سب آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا. حضرت شمویل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات و واقعات جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں اسلامک ہب کے ایک اور منفرد اور خوبصورت موضوع کی جانب. معزز ناظرین گرامی، حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل توحید کی تعلیم فراموش کر بیٹھے. انہوں نے دین سے اصل تعلیمات میں رد و بدل کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی. بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی گئی. حالانکہ اس دوران انبیاء کرام انہیں روکتے اور تنبیہ کرتے رہے، لیکن وہ شرک سے باز نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا. کبھی ان پر قوم عمالقہ قابض ہو جاتی، تو کبھی فلسطینی حملہ آور ہوتے، تو کبھی آرامی. یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا آزمائش کا دور تھا. ان میں کوئی نبی تھا اور نہ سردار. ایسے میں مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں آباد قوم عمالقہ کے ایک ظالم و جابر اور سفاک بادشاہ جالوت نے حملہ کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا. بہت سے سرکردہ افراد کو قتل کر دیا گیا. بنی اسرائیل جب حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ وادی طیہ سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا. یہ وہ صندوق تھا جس میں عصائے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پیرہن، پگڑی، پوشاک، تورات کا اصل نسخہ، من و سلوہ کا مرتبان اور انبیاء کرام کے دیگر متبرکات موجود تھے. بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مقدس صندوق ان کے پاس موجود ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک خون ریز جنگ کے دوران بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر اپنے بیت دجون نامی مندر میں رکھ دیا. یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا دجون کے نام سے موسوم تھا. پتھر کے اس دیوتا کا سر انسانی شکل اور دھڑ مچھلی سے مشابہ تھا. نجار مصری رحمت اللہ علیہ کے مطابق فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی دجون کے نام سے موجود ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ اسی جگہ پر واقع تھا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل غزہ اور اہل اسکلان نے ان سے تابوت سکینہ چھین کر ایسا کر دیا تھا جیسے چرواہے کے بغیر بکریاں. معزز دوستو، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی میں ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے. خاندان نبوت کا کوئی فرد بھی زندہ نہ بچا تھا سوائے ایک غریب عورت کے جو حاملہ تھی. اللہ نے اس عورت کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شمویل رکھا گیا. شمویل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں معنی ہے اسماعیل. والدہ کی خواہش تھی کہ شمویل تورات کے عالم بن کر بنی اسرائیل کو دین حق کی تعلیم دے. چنانچہ آپ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا. آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے. بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا. حضرت شمویل علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت شروع کی تو جالوت اور دیگر اقوام کے ظلم و ستم نے انہیں حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سننے پر مجبور کر دیا. اب یہ لوگ حضرت شمویل علیہ السلام کو اپنا ہمدرد، خیر خواہ اور نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ دستور تھا کہ سردار اور بادشاہ تو حکومت اور انتظامی معاملات چلاتے، جبکہ قاضی اور منصف کی حیثیت سے تمام عدالتی فیصلے نبی اور ان کے مقرر کردہ قاضی انجام دیتے. اس طرح گویا تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور دینی و عدالتی تمام امور کی نگرانی کا فریضہ نبی کے ذمہ تھا. حضرت شمویل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات اور حضرت شمویل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے. بہرحال اس قدر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہی ہو سکتا ہے. معزز ناظرین گرامی، بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے.
जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता। खवातीन को तंग करना और नौजवानों को गुलाम बना लेना आम बात थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरसो तबलीग और वाजो नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरखास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में इरशाद रब्बानी है, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, पैगंबर ने कहा अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहले तही करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दरअसल हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी बादशाह को मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहां बैठे हैं। और जब हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज्यादा जलीलो रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन गिरामी, बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए मुतला फरमाया कि हमने बनी इसराइल ही में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर शख्स तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फक हो गए। वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में इरशाद रब्बानी है, और पैगंबर ने उनसे कहा अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनो तोश भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा ही कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत ही को चुना है जो इल्म और ताकत और कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाने वाले। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि वो खालों को खुश्क करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया कि वो तो निहायत गरीब है, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामीन से था। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल तालूत की बादशाहत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद बारी ताला है, और पैगंबर ने उनसे कहा उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था, जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है कि फलस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता औंधा पड़ा है। वो हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर उसे औंधा गिरा पाते। इसी असना में एक और नई बात यह हुई कि उनके शहर में लातादाद चूहे पैदा हो गए,
जिन्होंने उनके मालो असबाब और गल्ले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काहिनों और नजूमियों को जमा किया गया, जिन्होंने बताया कि कौम पर नहुसत इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। इसकी सूरत यह है कि सोने के 7 चूहे बनाए जाएं, जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए। फिर गाड़ी में 2 गायें जोती जाएं और उनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गायें संदूक वाली गाड़ी लेकर खुद बखुद बनी इसराइल की बस्ती की जानिब चल दी, जहां से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले गए। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने उस संदूक को बनी इसराइल तक पहुंचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही, चुनांचे उन्होंने तालूत की बादशाही कबूल कर ली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौलो फेल के तजाद का इल्म था। जब वो उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुंचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुंचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुंचे तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस तरह बनी इसराइल की गालिब अक्सरियत हजरत तालूत से अलग हो गई। जिन लोगों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की इताअत की थी और पानी नहीं पिया था, उनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 तहरीर की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हजरत बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा की तादाद सिर्फ असहाबे तालूत के बराबर है, जिन्होंने नहर पार की थी। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इरशाद फरमाया, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल आए तो अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और कुफार पर फतह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और दानाई बख्शी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्कर में शामिल एक नौजवान थे जो अपने 13 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जिहाद की तरगीब देते हुए फरमाया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लूंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो जालूत को कत्ल करने का अज़्म कर लिया। आप अलैहिस्सलाम गुलेल से पत्थर फेंकने में माहिर थे, चुनांचे जालूत से लड़ाई की इजाजत चाहिए। तालूत ने शुरू में तो ना तजुर्बाकार समझकर मना कर दिया, लेकिन फिर उनके ज्यादा इसरार पर इजाजत दे दी। दोनों जानिब की फौजें सफारा हुई। एक तरफ कुफार की फौज थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक भारी भरकम डील डोल का मालिक, निहायत मजबूत, तवीलुल कामत और लहीम शख्स था। उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर सा नौजवान समझकर नजरअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूं। फिर उन्होंने अपनी गुलेल में 3 पत्थर रखकर पूरी कुव्वत से जालूत की जानिब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगे और उसका सर पाश पाश हो गया। ये मंजर देखकर जालूत की फौज बदहवास होकर भाग निकली और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम कर दिया। यूं हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की मेहनत और कोशिशें रंग लाईं और बनी इसराइल को तवील मुद्दत बाद दोबारा फतह नसीब हुई। इस कामयाबी के कुछ अरसे बाद हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम वफात पा गए। दोस्तों, आज की वीडियो को तवालत के बायस यहीं खत्म करते हैं। इस्लामी मालूमात से भरपूर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए सिलसिले के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।